हाँ ले रहा हूँ। Okay, so अच्छा, all of you have filled your university form. सबका हो गया? Yes, ma'am. Okay, very good, very good, very good. So let's start with the next point here. It's your NEFT. हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा? We have seen the RTGS, then we have seen the POS, and now we're going to see the NEFT. Okay, NEFT, you people are maybe very much familiar with the NEFT because whenever you people are paying the fees, and you know, like अभी तक जो भी आप लोगों ने fees payment किया for the college, so that was all basically you have done it through the NEFT. Majority of you might have done it through the NEFT only, so you must be very familiar with this point. Okay, let's start here. Introduction to NEFT. National Electronic Fund Transfer. What is the full form of NEFT? It is National Electronic Fund Transfer. What was the full form of POS, student? POS का क्या full form था? बोलो. What was the full form of POS? याद करो. Point of क्या था? Point of sale. Yes, it was point of sale. What was the full form of RTGS? Real time Gross settlement. Yes, it was real time gross settlement, POS, point of sale. And then we are talking about the NEFT. So NEFT full form is National Electronic Fund Transfer. Transfer. So it is an electronic fund transfer system maintained by the Reserve Bank of India. And this NEFT was exactly started in November 2005. NEFT is a facility enabling bank customer in India to transfer fund between any two NEFT enabled bank accounts on one-to-one basis. Okay, मतलब उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे? When that NEFT transfer can be possible when the other account, other account should also have that NEFT enabled. Then only this transaction can be happen. Okay, it is done via electronic messages. Unlike real-time gross settlement, that is RTGS, fund transfer through NEFT system do not occur in real-time basis. NEFT settle fund transfer in hourly batches, now 30 minutes batches, with 12, that is now 23 settlement occurring between 8 a.m. to 7 p.m. on weekdays. Transfer initiated outside this time period are settled at the next available window. No settlement are made on the second and the fourth Saturday of the month or on Sunday. Okay, उन्होंने कहा है कि NEFT कब पॉसिबल होता है उसके बारे में कहा है. दे आर सेइंग लाइक RTGS हम लोग रियल टाइम में जैसे कर सकते हैं, बट NEFT वी कैन नॉट डू इन दैट वे. NEFT के लिए मतलब उन्होंने एक टाइमिंग दिया है कि 8 to 7 p.m. के बीच में ही वी कैन डू द NEFT. Then again, we cannot do it on the second and the fourth Saturday, and even on the Sunday. So that day, that kind of a settlement cannot be happened over here. NEFT facilities are available at 74,680 branches, offices of 101 banks across the country, out of around 82,400 bank branches as of January 2011. Okay, ये सब मतलब it is like how many banks are having this NEFT. This is all about that. ठीक है. Then I think मेरे हिसाब से अभी majority banks are having NEFT facility. ऐसा नहीं है कि किसी बैंक में NEFT facility नहीं रहता है. मतलब आप लोगों ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है क्या कि कोई बैंक के पास NEFT का फैसिलिटी नहीं है करके? मतलब मेरा अभी तक ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ है that NEFT is not available in any of the banks. All the banks are doing NEFT nowadays. So NEFT has gained popularity due to its saving on time and ease with which the transaction can be concluded. This reflects from the fact that 42% of the electronic transaction in 2008 financial year were NEFT transaction year. So NEFT का process उन्होंने बताया है. Request by remitter, then remitter bank prepares structured financial message solution and send to the service center of remitter bank for NEFT. Okay. Then यहाँ पे receiver, then national clearing sale RBI मुंबई उसको authority देता है.
then bank wise sorting of transaction and affecting any net debit or credit through the next available settlement. Okay, उसके बाद में रिसीवर बैंक के पास वो मैसेज जाएगा and then that money will be given to the customer. Okay, so this is what the working of NEFT. So यहाँ पे डेबिट में रेमिटर्स अकाउंट एंड क्रेडिट में कस्टमर्स अकाउंट. ओके, मतलब देखो जब आप लोग कॉलेज के लिए एनईएफटी करते हो कि फीस पेमेंट करते हो तो वो प्रोसीजर कैसा है उन्होंने उसके बारे में बताया. जैसे अगर आपका अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और नारायण गुरु का अकाउंट है सिंडिकेट बैंक में. ओके, तो आप लोग क्या करोगे, आपके वहाँ पे आपको किसको पैसा देना है, तो पैसा आपको देना है नारायण गुरु को. सो दैट विल बी द कस्टमर्स अकाउंट, तो वो हो जाएगा कस्टमर अकाउंट. ठीक है, एंड तुम लोग अपने पॉकेट में से पैसा दे रहे हो, सो दैट विल इट विल बी योर remitters account. Okay, so आप as a remitter you will going to request to your bank, मतलब remitters बैंक, मतलब जैसे कि आपका SBI के बैंक को आप रिक्वेस्ट करेंगे कि इतना इतना पैसा ये जगह पे ट्रांसफर करना है करके. ठीक है, तो जैसे हम लोग एक रिसिप्ट भरेंगे एनईएफटी के लिए, उनसे चार्जेस वगैरह पूछेंगे, अगर चार्जेस रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वी विल गोइंग टू फिल द फॉर्म. और वो फॉर्म के थ्रू जो रेमिटर बैंक रहेगी, जो हम लोगों ने जितना अमाउंट वहाँ पे कहा है डेबिट करने वो पर्टिकुलर कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए, उसके लिए वो इंस्ट्रक्शन भेजेगी. एंड उसका मतलब जो सर्विस सेंटर ऑफ द रेमिटर बैंक फॉर एनईएफटी, तो वो लोग यहाँ पे जो एनईएफटी बेसिकली प्रोवाइड करते हैं वो लोग इसके ऊपर स्टडी करेंगे. एंड देन वो ये जो मैसेज है वो आरबीआई के पास भेजेंगे, नेशनल क्लियरिंग सेल आरबीआई के पास भेजेंगे. देन आरबीआई क्या करेगी कि जिस बैंक के पास देना है तो उस बैंक के पास वो पैसा वहाँ पे ट्रांसफर करेगी. रिसीवर बैंक जैसे कि सिंडिकेट बैंक है, तो सिंडिकेट बैंक के पास वो पैसा आ जाएगा एंड द सिंडिकेट बैंक विल गोइंग टू प्रोवाइड दैट मनी टू द नारायण गुरु अकाउंट. So this is what basically NEFT is working here. Okay, so all process is completed in NEFT within half an hour to 1 hour. मतलब आधे घंटे या एक Excuse me, घंटे ma'am. में आ जाता है. हाँ, यस Sorry for disturbing you. Actually, मैम ये पूछ रही थी मैं remitters accounts means. रेमिटेंस अकाउंट मतलब जैसे मैं मतलब जैसे तुम लोग हो, तुम लोग नारायण गुरु को पैसा दे रहे हो तो वो आपका अकाउंट हो गया रेमिटर अकाउंट. मतलब आप डेबिट करने के लिए बोल रहे हो, अपने अकाउंट में से पैसा निकालने के लिए बोल रहे हो पैसा, अपने ओन अकाउंट में से फंड ट्रांसफर करना. हाँ, तो वो आपका रेमिटर अकाउंट कहा जाएगा. और जैसे आप नारायण गुरु को Okay. पैसा दे रहे हो तो दैट विल बी द कस्टमर अकाउंट, तो वो कस्टमर का अकाउंट जाएगा. ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट बाय रेमिटर Okay, आप ma'am. Okay, रिक्वेस्ट thank करोगे you. ना, आप फॉर्म भरोगे कि मुझे यहाँ पे एनईएफटी किया रहेगा ना आप लोगों ने अभी या कभी नहीं किया ऐसे ऑफिस में जाके वगैरह, बैंक में जाके किया है किसी ने एनईएफटी? यस स्टूडेंट, अभी तो किसी ने भी नहीं किया Yes, ma'am. 11th standard में किया था. हाँ वही एनईएफटी सब लोग ने किया रहेगा अभी तो, मतलब तुम लोग एकदम यूज टू हुए रहोगे ये सब एनईएफटी वगैरह करने के लिए. ठीक है, ये हो गया अपना प्रोसेस. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने डिटेल में दिया हुआ है, चलो हम लोग फिर भी इसको रीड करेंगे. उन्होंने क्या बताया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर that is the NEFT system is a nationwide fund transfer system to facilitate transfer of funds from any branch to any other bank branch. Step 1, the remittance fills in the NEFT application form giving the particulars of the beneficiary. जैसे कि आप वहाँ पे डिटेल लिखोगे कि बैंक ब्रांच कौन सा है, बेनिफिशियरी का नाम क्या है, कौन सा अकाउंट टाइप है, अकाउंट नंबर क्या है, जो हम लोग आपको भेजते हैं ना कि ये अमाउंट पे ये पर्टिकुलर डिटेल्स के ऊपर ये अकाउंट के ऊपर आप पैसा भेजो कॉलेज फीस का, तो उस हिसाब से. ठीक है, and authorizes the branch to remit the specified amount to the beneficiary by raising a debit to the remittance account. This can also be done by using net banking services offered by some of the bank. Even net banking के थ्रू भी करते हैं. और अगर आप लोग ऑनलाइन बैंकिंग करते हो एनईएफटी वगैरह तो ये इट बेसिकली यू आर डूइंग इट थ्रू द नेट बैंकिंग. लेकिन अगर आप ऑफिस में जाके करते हो, सॉरी ऑफिस में मतलब जब आप बैंक पे जाके करते हो पैसा एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को दे रहे, किसी और जगह पे पैसा दे रहे, so that will be coming into the NEFT. Okay, so step 2, the remitting branch prepares a structured financial messaging solution that called as SFMS message and send it to the service center for NEFT. Then step 3, the service center forward the same to the local RBI, that is National Clearing Cell Mumbai, to be included for the next available settlement.
Presently, NEFT is settled in 6 batches at 930. Okay, उन्होंने आवर्स के हिसाब से दिया है. आवर्स ऑन वीकडेज एंड these are the hours on Saturday. अच्छा ठीक है, मतलब वीकडेज में कभी एनईएफटी का पैसा पूरा वहाँ पे सेटल होगा और सैटरडेज में कौन से टाइम पे सेटल होगा उसके बारे में है. Then step 4, the RBI at the clearing center sort the transaction bank wise and prepare accounting entries of the net debit or the credit for passing on to the banks participating in the system. Thereafter, bank wise remittance messages are transmitted to the बैंक है. मतलब जो यहाँ पे पूरा जो प्रोसीजर है, मतलब आप बोलेंगे कि मैम हम लोगों ने वहाँ पे तो एप्लीकेशन दे दिया, तो वहाँ पे मेन कौन रहेगा कि जो उसको क्लियरेंस देता है कि नहीं ठीक है ये प्रोसीजर, ये जो एनईएफटी है ये हम लोग कर सकते हैं. मतलब बोलते हैं ना कि पैसा कैसे जाएगा, तो यहाँ पे पैसा एक्चुअली पहुंचाने के लिए जो मेन काम करेगा दैट विल बी योर दिस वन, नेशनल क्लियरिंग सेल. ओके, ये वाला एक्चुअली तुम्हारा मेन काम करेगा कि वो पैसा कैसे वो मतलब पैसा आप बोलोगे कि एसबीआई ने इतना इमीडिएटली पैसा वहां पे कैसे भेज दिया, तो इट विल नॉट गोइंग टू हैपन. वो जो पूरा मतलब डिडक्शन का देन उनको पेमेंट का वो जो पूरा पार्ट रहेगा वो ये लोग क्लियर करेंगे. ठीक है, नेशनल क्लियरिंग सेल. एंड देन दैट मनी विल बी कमिंग इनटू द कस्टमर अकाउंट. तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये सब प्रोसीजर के लिए ऑलमोस्ट हाफ एन आवर 1 आवर लगता है. तो ऐसे नहीं कि आपने एनईएफटी के लिए एप्लीकेशन डाल दिया तो इमीडिएटली विद इन अ मिनट वहां पे पैसा चला गया, वैसे नहीं रहेगा. इट विल गोइंग टू टेक अ टाइम अराउंड लाइक मैक्सिमम उन्होंने कहा है कि 1 आवर इट विल गोइंग टू टेक, क्योंकि पूरा ये प्रोसीजर होने के लिए उन्होंने ऐसा बताया है. ओके, देन स्टेप 5 क्या है, द रिसीविंग बैंक प्रोसेस द रेमिटेंस मैसेज रिसीव फ्रॉम आरबीआई एंड अफेक्ट द क्रेडिट टू द बेनिफिशियरी अकाउंट. तो देर इज नो वैल्यू लिमिट फॉर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन. ऐसे कुछ भी वहां पे है नहीं कि आप कितना लिमिट तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. जैसे वी हैव सीन लाइक मिनिमम कितना अमाउंट होना चाहिए, दैट वाज वी हैव सीन इन आरटीजीएस. ओके, बट इन एनईएफटी दे आर सेइंग लाइक देर इज नो सच काइंड ऑफ अ लिमिटेशन कि कितना अमाउंट तक का ट्रांजैक्शन करना है. तो दिस आर ऑल अबाउट द एनईएफटी. अभी मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट, एनईएफटी ये बेसिकली जो ये प्रोसीजर है इसका, ओके चलो एक 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं. बेनिफिट हम लोग बाद में देखते हैं, पहले एक रिवीजन जैसा देखते हैं हम लोग. चलो मुझे पता है एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर. हाँ, ये कौन से ईयर में स्टार्ट किया? 2005 हाँ, अगर मुझे एनईएफटी करना है, अगर मुझे किसी नवंबर 2005 है. अगर मुझे किसी बैंक में एनईएफटी करना है, ठीक है, मेरे बैंक के पास तो एनईएफटी अवेलेबल है, लेकिन मुझे किसी बैंक के पास एनईएफटी करना है तो ये बहुत मैंडेटरी है क्या कि उनके पास भी वो एनईएफटी एनेबल सिस्टम होना चाहिए करके? इज इट मैंडेटरी? हाँ, ये जरूरी होता है. ठीक है, उनके पास भी वो एनईएफटी एनेबल सिस्टम होना चाहिए. ठीक है, एनईएफटी में उन्होंने 2 पार्ट में कहा है कि वन इज द रेमिटर अकाउंट एंड वन इज द कस्टमर अकाउंट. तो यहाँ पे रेमिटर अकाउंट किसको कहा जाएगा? जिनके अकाउंट में से पैसा जाएगा उसको, या फिर जिसको पैसा मिलेगा उसको? मैम जिसको पैसे मिलेंगे. क्या जिसको? जिनके अकाउंट से पैसा जाएगा मैम. हाँ, जिनके अकाउंट नहीं, में पैसा जाएगा दैट विल गोइंग टू कंसीडर एज रेमिटर अकाउंट. और यहाँ पे कस्टमर अकाउंट कौन रहेगा? हु विल बी द कस्टमर अकाउंट हियर? हम जिनको पैसे मिलेंगे. हाँ, जिनको पैसे मिलेंगे वो रहेगा कस्टमर अकाउंट. ठीक है, सो एनईएफटी जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पे फॉर्म वगैरह भरते हैं, वहाँ पे हम लोग डिटेलिंग लिखते हैं कि कौन से अकाउंट में जाना चाहिए, ये कौन से बैंक का अकाउंट है, ये बैंक का ब्रांच कौन सा है करके. दैट ऑल डिटेल वी आर राइटिंग ओवर देयर. इवन हम लोग आईएफएससी कोड भी वहाँ पे लिख के बैठे, बिकॉज थ्रू द आईएफएससी कोड ओनली दे विल कम टू नो लाइक विच पर्टिकुलर ब्रांच इट इज. जैसे हम लोगों ने देखा ना आईएफएससी कोड में क्या रहता है, स्टार्टिंग का नंबर उनका बैंक का नाम रहता है, उसके बाद में जो देन 00 करके आता है, एंड उसके बाद में जो नंबर रहेगा वो उनका थर्ड पार्ट क्या बताता है, थर्ड पार्ट विल गोइंग टू गिव द यूनिक कोड फॉर द ब्रांच कि कौन से ब्रांच, ये कौन सा ब्रांच है करके उसके बारे में वो डिटेलिंग देता है. ओके, सो दिस वे आईएफएससी कोड भी हम लोग वहाँ पे लिखते हैं, तो मैसेज पूरा चला जाता है. अभी यहाँ पे जस्ट आपके बैंक ने भले आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया, लेकिन मेन एक्सेप्टेंस कहाँ से आना चाहिए? क्या समझा आपको? मेन एक्सेप्टेंस को कहाँ से आना चाहिए यहाँ पे कि हाँ ठीक है ये एनईएफटी हम लोग कर सकते हैं करके, ऐसा एक्सेप्टेंस कहाँ पे आना चाहिए? बोलो.
कब वो सब ट्रांजैक्शन कब सेटल होगा, किसके अप्रूवल के बिना वो सेटलमेंट नहीं हो सकता है? RBI. हाँ, so what is the name for that RBI sale? It is National Clearing Sale. Clearing sale, RBI move. RBI, ठीक है, National Clearing Sale RBI, and if they are approving it, then only that transaction can get settled. तो ऐसा रहता है क्या कि अभी मैंने भेजा तो इमीडिएटली वो लोग चेक करेंगे, वैसा नहीं रहता है. तो दे हैव आल्सो केप्ट अ सर्टेन टाइम कि कितने कितने टाइम के बाद वो लोग चेक करते रहेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या है करके, तो उसके हिसाब से वो अपने टाइम के हिसाब से वहाँ पे सेटलमेंट करते हैं. तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि ये जो सेटलमेंट है वो फाइनली बेनिफिशियरी के अकाउंट में आने तक कितना टाइम लेता है थ्रू द एनईएफटी, कितना अमाउंट, ये जो अमाउंट है ये वहां तक पहुंचना, मतलब बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा जाने के लिए कितना टाइम लगेगा थ्रू एनईएफटी? विद इन अ सेकेंड हो जाएगा या इट विल गो Up to 1 hour. हाँ, हाफ एन आवर टू 1 आवर वहां पे टाइम लगेगा. वेरी गुड. सो दिस इज ऑल अबाउट योर एनईएफटी वी हैव सीन. ओके, नाउ वी विल गोइंग टू सी द बेनिफिट्स ऑफ एनईएफटी. Safe and effective. For a seamless movement of fund on the internet, you could opt for NEFT as it helps you transfer any amount of money quickly. हाँ, मैंने आपको इसके बारे में पूछा ही नहीं. NEFT में कुछ लिमिटेशन है क्या स्टूडेंट, कितना पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हो करके? कोई लिमिटेशन है? Yes. Yes, ma'am. Yes, there is a limitation. Okay, can you tell me how much is the limitation? 2 lakh. नहीं ना, वो आरटीजीएस के लिए था. एनईएफटी के लिए कोई लिमिटेशन नहीं रहता है. एनईएफटी आप कम से कम अमाउंट का भी, इवन आपको चाहिए तो आप 100 रुपए का भी एनईएफटी कर सकते हो, आपको चाहिए तो आप 50 रुपए का भी एनईएफटी कर सकते हो. सो देयर इज नो लिमिटेशन. आपको अगर लेकिन जैसे हम लोगों ने देखा है कि मैक्सिमम अमाउंट के लिए पीपल आर प्रिफरिंग द आरटीजीएस. अगर ज्यादा बड़ा अमाउंट रहेगा तो उसके लिए आरटीजीएस रखा जाता है. लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बुक में उन्होंने कहीं पे भी लिखा नहीं है कि एनईएफटी के लिए हायर लिमिटेशन क्या है करके. सो दे हैव नॉट रिटन इट. आई थिंक वी हैव टू सर्च. तुम लोग भी थोड़ा देखो, गूगल पे सर्च करो एनईएफटी के लिए कोई हायर अमाउंट का लिमिटेशन है क्या. अच्छा, यहाँ पे मैंने गूगल पे Yes, ma'am, you are right, ma'am. Google पे बता रहा है, इसमें यहाँ पे कोई लिमिट नहीं, मैक्सिमम और मिनिमम. अच्छा, मैक्सिमम एंड मिनिमम उन्होंने कहा हुआ है ना. लेकिन मैं आपको बोलूँ यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, जितना मैं एनईएफटी लिमिट बैंकिंग पैसाबाजार.com से मुझे दिख रहा है. व्हाट दे आर राइटिंग हियर, 25 लाख पर कस्टमर आईडी वाया ऑनलाइन एनईएफटी करके लिखा हुआ है. मतलब अगर हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनईएफटी के लिए मिनिमम के लिए मतलब कोई लिमिट नहीं है. एंड अगेन फॉर द मैक्सिमम ऑल्सो दे हैव टेकन इट एज ₹10 लाख. बट पता नहीं हाउ मच इट इज ट्रू. किसी ने मतलब मैक्सिमम वाले तो कभी किसी ने किया भी नहीं रहेगा. हाँ, लेकिन यहाँ पे और एक रिटेल कस्टमर पर अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹20 लाख इन अ डे यूजिंग बोथ मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग चैनल सच एज आरटीजीएस, एनईएफटी चाहिए, सब उसके अंदर लिखा हुआ है. आप लोगों को क्या दिख रहा है? मुझे यहाँ पे लिख रहा है कि मिनिमम के लिए कोई ऐसा ये नहीं है, बट मैक्सिमम के लिए थोड़ा है वहाँ पे लिमिटेशन. आप लोगों को क्या दिख रहा है गूगल पे? यस, कैन यू सी एनीथिंग? मैं रीड करूँ? हाँ, बोलो क्या लिखा है उन्होंने, बोलो. 1 second, ma'am. Okay. With NEFT transfer, the biggest advantage is that there is no cap on the minimum and the maximum amount that you transfer. The minimum amount transferred can be as low as ₹1, while for other fund transfer option like RTGS, there is a minimum limit of ₹2 lakh. Full stop. अच्छा, मतलब उन्होंने आरटीजी मतलब मिनिमम के बारे में ही बोला ना कि मिनिमम के लिए वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है. बट मैम दोनों के लिए बोला उन्होंने, नो कैप ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम. और मैं अभी एसबीआई का साइड में देख रही हूँ ना, तो एसबीआई के साइड में उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि मतलब यहाँ पे, हाँ मतलब इंटरनेट बैंकिंग के लिए उन्होंने देखो आरटीजीएस के लिए मिनिमम 2 लाख लिखा है और एनईएफटी के लिए नो मिनिमम लिखा हुआ है. आरटीजीएस के लिए मैक्सिमम 10 लाख लिखा हुआ है और एनईएफटी के लिए भी उन्होंने 10 लाख ही लिखा है.
एंड ये कौन सा वाला है, व्हाट इज द अमाउंट दैट अंडर कॉर्पोरेट और ये रिटेल इंटरनेट बैंकिंग के लिए उन्होंने कहा है। एंड देन अगेन फॉर कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के लिए, मतलब अगर कंपनी टू कंपनी का अगर रहेगा तो वहां पे आरटीजीएस के लिए ₹2 लाख का है मिनिमम। एंड यस इसके लिए मैक्सिमम अमाउंट है पर ट्रांजैक्शन, नहीं ये ज्यादा है, 2000 करोड़ वगैरह है आरटीजीएस के लिए। एंड एनईएफटी के लिए है नो मिनिमम अमाउंट एंड देन मैक्सिमम वहां पे है 50 लाख वगैरह, ऐसा वाला ही है। तो आई थिंक डिपेंड रहेगा ये शायद से कि हर एक बैंक के अकॉर्डिंग उन्होंने दिया रहेगा। आई रियली डोंट नो कैसे रहेगा, मतलब प्रैक्टिकली अभी ये क्या रहेगा सिचुएशन बता नहीं सकते। बट जितना समझ में आ रहा है कि आरटीजीएस के लिए मिनिमम का लिमिटेशन है, बट फॉर एनईएफटी देयर इज नो मिनिमम लिमिटेशन, दैट वी कैन कंक्लूड हियर। मैक्सिमम का वी कैन नॉट से एनीथिंग लाइक व्हाट एग्जैक्टली दे आर सेइंग कि कस्टमर टू कस्टमर डिफरेंट रहता है, कि जैसे वी आर द कॉमन कस्टमर तो हमारे लिए अलग रहेगा मे बी एनईएफटी का, और जो रिटेल जो बेसिकली कंपनीज का अकाउंट रहता है, कॉर्पोरेट सेक्टर का अकाउंट रहेगा, तो उनके लिए अमाउंट अलग रहेगा। मेरे हिसाब से यही रहेगा शायद से। हम लोग तुम लोग भी थोड़ा इसके बारे में स्टडी करो, अगर कुछ आपको पता लगता है, कुछ कंक्लूजन निकलता है तो नेक्स्ट लेक्चर मैम में। एक्चुअली एनईएफटी में ना ये एडवांटेज है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है अमाउंट की, मिनिमम और मैक्सिमम में। हाँ शायद वही। लाइक कितना भी रिसीव कर सकते हैं। ओके। लेकिन देखो ना हमारा सिचुएशन ऐसा है कि हम लोग मिनिमम भी नहीं ठीक से कर सकते, मैक्सिमम कहाँ पे करेंगे। ओके यस मैम। ओके देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट। ये थोड़ा ब्लर आया, मैं रीड करते आपके लिए। नाउ द नेक्स्ट बेनिफिट हियर, लो प्रोसेसिंग चार्जेस, इंटरनेट बैंकिंग एंड एनईएफटी आर फ्लेक्सिबल पेमेंट, flexible payment option which are very economical. For getting this facility, you don't have to reimburse a huge sum of money to your bank. The processing charges are quite low and you can transfer any amount of money without any difficulty. हाँ processing charges उन्होंने कहा है कि उसका बहुत कम रहता है करके। They're highly dependable. NEFT, an integral aspect of internet banking, is a highly dependable method of making payment and receiving funds online. Most of the banks in India are regulated under the norms set by RBI, and hence the internet banking facility too is quite safe in nature. So highly dependable मतलब NEFT अगर हमें करना है तो हम लोगों के पास मतलब वो बैंक के पास वो इंटरनेट बैंकिंग होना ही चाहिए, then only they can do the NEFT. So they are totally depend on the internet. अगर इंटरनेट नहीं काम कर रहा है so this और इंटरनेट बैंकिंग नहीं है so we cannot do the NEFT also. Okay. Then disadvantages of NEFT, highly technical. One of the major drawback of internet banking and the NEFT transfer in India is that this is highly technical method of fund transfer, which is not easy to operate for everyone. An individual with little knowledge of computer or the internet might not be able to operate an internet banking account easily. मुझे नहीं लगता इतना डिफिकल्ट है करके। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कभी किया है इंटरनेट बैंकिंग आप लोगों ने? यस अब मुझे यस मैम। आप लोगों का बस क्या पता होना चाहिए कि हाँ बट उन्होंने ये बात तो करेक्ट की है कि कंप्यूटर नॉलेज वगैरह होना वहाँ पे जरूरी है। आपको पता होना मतलब एक तो आपका वहाँ पे आईडी क्रिएट होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, उसके बाद में देन जो ओटीपी आता है वो आपको बराबर से वहाँ पे लिखने के लिए आना चाहिए, जो वहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देने वाले हो इंस्ट्रक्शन वहाँ पे क्लियरली इंडिकेट करना चाहिए। तो यस दिस काइंड ऑफ नॉलेज शुड बी देयर। बट जितना मुझे पता है कोई अगर एक बार प्रैक्टिकली कर लेगा, एक या दो बार प्रैक्टिकली कर लेगा, देन दे विल नॉट गोइंग टू फाइंड इट मच डिफिकल्ट। हाँ बट इसके लिए ये जरूरी है कि किसी ने वो दिखाना चाहिए एटलीस्ट फर्स्ट टाइम पे, और एल्स अदरवाइज दे शुड सी द स्टेप्स ऑन गूगल और मे बी ऑन गूगल और मे बी ऑन यूट्यूब की कैसे इंटरनेट बैंकिंग किया जा सकता है करके। अगर उसके थ्रू वो लोग सीखेंगे तो आई डोंट थिंक सो इट विल बी सो डिफिकल्ट। ओके नाउ द रिस्क, अभी तो इवन आप लोगों ने एक चीज नोट किया रहेगा कि जो वेजिटेबल सेलर वगैरह जो रहते हैं इवन दे आर यूजिंग द जीपे एंड ऑल, उसके थ्रू भी वो अपना पेमेंट वगैरह करते। तो अभी ऑलमोस्ट सब लोग टेक्निकली सेवी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई अनएजुकेटेड है तो वो नहीं कर पा रहा है करके, नहीं, अगर एक बार दिखा देंगे सबको तो वो कर ही लेते, बिकॉज एवरीबडी हैज मोबाइल, और अभी सबके पास जितना देखा जाएगा तो मैक्सिमम पीपल आर यूजिंग द एंड्रॉइड मोबाइल फोन। भले वो कितने भी गरीब रहेंगे बट स्टिल दे विल गोइंग टू हैव दिस काइंड ऑफ अ मोबाइल फोन, और इंटरनेट भी रहता है उनके पास। तो सब लोग जियो का कार्ड यूज करते रहेंगे मे बी, है ना?
जियो को ज्यादा बहुत ज्यादा सस्ता है क्या जियो का, या फ्री में है अभी भी? यस, व्हाट इज सिचुएशन विद द जियो कार्ड? मैं जहाँ पे भी देखती हूँ इंटरनेट के लिए सब लोग जियो जियो ही बोलते रहते हैं। मेरे पास नहीं, इसके लिए मैं पूछ रही, जियो इज मतलब बहुत ज्यादा चीप है क्या उसका इंटरनेट? हाउ मच यू आर लाइक यू नीड टू पे टू गेट दैट इंटरनेट? यस, किसी के पास नहीं है जियो का कार्ड? नो मैम। No. सरप्राइज, मुझे लगा सब लोग वही कार्ड यूज करते रहेंगे मैक्सिमम लोग तो। ठीक है, चलेगा। Okay, so it is considered as highly technical one that we have seen. And the second one here, the risks involved with online payment. Yes, even though most of the banks in India take proper steps to secure an NEFT transaction, it is quite possible that your information might get passed on to a hacker if you are using an unsecured browser. This is one of the reason why a lot of people across the country don't believe in this facility. बहुत सारे लोग NEFT ऑनलाइन बैंकिंग करना नहीं चाहते हैं because they are not feeling secure when they are doing any online transaction. For them it is secure, security is only one कि बैंक में जाओ, बैंक में से जितना पैसा आप जो भी ट्रांजेक्शन करना है उसके थ्रू करो, कोई जरूरत नहीं मोबाइल या घर पे बैठ के करने के लिए। तो अभी भी बहुत सारे लोगों का ऐसा है माइंडसेट that they are not doing this kind of Yes, ma'am. Like my mom. हाँ ना। Yes, ma'am. अच्छा, उनको ऑनलाइन नहीं करना यार ऐसे। अब जितना मुझे लग रहा है सारे पेरेंट्स का वही एटीट्यूड रहेगा, मतलब जो जिनके। एक्चुअली मैम भाई कभी कभी पेटीएम यूज करते हैं ना तो बोलते हैं नहीं नहीं पेटीएम भी नहीं रखना चाहिए। अच्छा, ये रहते हैं। उनको ऑनलाइन बैंकिंग ही नहीं पसंद है। लाइक अभी भी आप लोगों ने फी मतलब नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर अपने यूपीआई जो भी अपना मोबाइल में ऐप होता है उसके थ्रू फी पे करो, तभी भी मैम मतलब मम्मी ने मना कर दिए थे कि नहीं वहाँ पे कॉल में। बोली मम्मी कॉलेज में अलाउ ही नहीं है जाना तो कैसे हम फी कैश में कैसे हम उनको पे करेंगे बराबर तभी। है, बराबर है। यस मैम। नहीं, वो होता है एक्चुअली, बहुत सारे पेरेंट्स का वही नेचर है कि वो लोग मतलब नहीं बोलते ऑनलाइन बैंकिंग करने के लिए। वो बोलते कि इतना क्या है तुम लोग को जाने के लिए, बैंक में जाने के लिए नहीं होता है करके, मतलब दे आर। और कैसे बहुत सारे केसेस देखते हैं ना हम लोग, ऐसे फ्रॉड वाले हमेशा न्यूज में आते रहते हैं वगैरह। और इतना ही नहीं तो कभी कभार इवन जब हम लोग नॉर्मल एटीएम भी यूज करते हैं तो एटीएम में भी कभी कभार क्या होता है कि पैसा निकलता नहीं है लेकिन अपने अकाउंट में से गया है करके दिखता है, तो कितना टेंशन वाली एकदम टेंशन आ जाती है कि अरे बाप रे अभी पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा करके। और उसके प्रोसीजर के लिए भी वो लोग बहुत टाइम लेते हैं, मतलब जल्दी भी नहीं करवा के देते कि चलो अभी मैंने कंप्लेंट डाला तो इमिडिएटली मुझे आधे घंटे के बाद पैसा मिल जाएगा, वैसा भी नहीं रहता है। वी नीड टू वेट देयर फॉर एटलीस्ट 1 or 2 days, उसके बाद में दैट मनी विल गोइंग टू ट्रांसफर इनटू योर अकाउंट, ऐसा होता है। तो ये एक्चुअली कभी कभार मशीनरी भी धोखा दे देती है। तो some of the people are not believing on this stuff. Okay, so these are all about your NEFT. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे IMPS, that is immediate payment service. तुम लोगों के लिए असाइनमेंट ये है, अभी असाइनमेंट ऐसा रहेगा कि आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि NEFT का मिनिमम एंड मैक्सिमम हर एक बैंक के लिए कैसा है और वो कैसे वर्क होता है करके, ये आप लोग फाइंड आउट करके रखोगे और मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताओगे कि मैं ये पूछने वाली हूँ। ठीक है, NEFT के बारे में कि कैसे ट्रांजैक्शन होता है, अगर किसी को पॉसिबल रहेगा तो कम आउट विद दैट रिसिप्ट आल्सो। NEFT जो हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं ना इसमें बैंक में, तो अगर आप गूगल में से सर्च करके बराबर से वो लेके मतलब दिखा सकते हो, सो दैट विल बी बेटर। एंड यू कैन सेंड दैट असाइनमेंट इनटू योर गूगल क्लासरूम। आप गूगल क्लासरूम में भेजोगे मुझे एक एक ऐसा कि आप वो फॉर्म भेजोगे मुझे कि NEFT का फॉर्म कैसे रहता है, गूगल में से ढूंढ के निकालो स्टूडेंट, कोई जरूरत नहीं कि आपको ड्रॉ वगैरह करना है। आप गूगल में से ढूंढ के निकालो कि NEFT का फॉर्म कैसे रहता है, और मुझे आपके असाइनमेंट में आप लोग लिखोगे कि NEFT का आपने जितना भी स्टडी किया है तो उसके अकॉर्डिंग हाउ मच इज द मिनिमम लिमिट है या नहीं है, मैक्सिमम है तो वो कैसा है, अगर वो कस्टमर टू कस्टमर अलग अलग है तो वो कितना है। और आप लोगों को मुझे ये कौन से बैंक के लिए बताना है। वन इज फॉर SBI, आप मुझे ये SBI के बारे में बताओगे, एंड देन ICICI के बारे में बताओगे। ये 2 बैंक का स्टडी करो और मुझे वहां पे लिख के दे दो असाइनमेंट में। ओके, कर पाओगे? कैन यू डू दैट? बस सर्च ही करना है आपको, गूगल यस पे ही मैम। सर्च करना। यस मैम। ओके ओके, मैम क्या करना है? गूगल क्लासरूम में डालो असाइनमेंट में। ओके, लेट मी टेक योर अटेंडेंस नाउ। मैम
हाँ बोलो बेटा। मैम वो रिफंड का जो भी प्रोसेस है बस वो लिंक जो सेंड किया है उतना ही है कि और कोई प्रोसेस है उसका? रिफंड के लिए ना आपने ईमेल किया ना? यस मैम मैंने ईमेल किया है बट हाँ और बस कोई उतना ही प्रोसेस है प्रोसीजर क्या? है। जैसे आपका चेक तैयार हो जाएगा ना वो लोग आपको बुलाएंगे फिर। वो लोग ओके चेक में मैम पेमेंट ओके देने वाले हैं। हाँ, मतलब आप लोगों के अकाउंट में ऐसा वगैरह नहीं आने वाला है, वो चेक में पेमेंट देंगे। ओके ओके ठीक है। कैन यू सी द स्क्रीन? नहीं दिख रहा है ना अटेंडेंस का? No, ma'am. ओके नाउ कैन यू सी दैट? Yes. हाँ चलो 1 to 10 में बोलो जल्दी जल्दी। 6 मिनट इज देयर। मैम 10। मैम 5 6 7 8 एब्सेंट है। 5 6 7 8 एब्सेंट है। ओके 8 present ma'am. अब अच्छा 8 प्रेजेंट है। कौन है वो 8? Yes ma'am. अविनाश चौहान. चौहान तुम्हारा 9 है। अच्छा तुम 8 हो, सॉरी। 5 6 7 8 ना? यस मैम। हाँ 8 को मैंने दिया। ठीक है तो तुम्हारे ग्रुप में अभी 5 6 7 ही एब्सेंट है। ओके नाउ 11 to 20 में आई कैन सी रोल नंबर 15 18 एंड 20। इसके अलावा कोई है? Ma'am 14. 14 ओके। तो अभी आया आराम से एकदम। यस 21 to 30 में आई कैन सी ओनली 29। कोई और है? मैम 24। ओके और बहुत सारे लोग हैं ना अभी भी रोल नंबर नहीं लिखे Ma'am हैं ना? 30. Ma'am 30. रोल नंबर लिख के तुम लोग नहीं आ सकते हो? ओके 30 ma'am 30. हाँ दिया बेटा। देन 31 to 40 में आई कैन सी 31 34 36 37 38 39। इसके अलावा कोई मैम है? 31 34 36 32 मैम। 7 ओके 32। यस मैम। हाँ देखो 39 तक हो गया। यस देन 41 to 50 में 36. यस इज दैट 36. 36 तब से दिया मैंने बेटा आपको। यस देन 41 to 50 में आई कैन सी नंबर 44 47 48 50। कोई है और? 44 47 48 50। Shital is also there. Shital, you are not writing your roll number. 49 मैम। हाँ तो रोल नंबर लिखा करो अपना। यस देन 51 में मुझे 51 एंड 54 आई कैन सी। 51 एंड देन 54। अभी ओमकार जाधव इसका क्या रोल नंबर है? जाधव जे जे किधर है? हाँ ओमकार जाधव को दे दिया, शीतल को दे दिया। सूरज मल्ला व्हाट इज द रोल नंबर? मल्ला एम किधर है? ओके सूरज मल्ला को दिया हुआ। एंड देन और कौन है? ओमकार जाधव शीतल सूरज मल्ला, इतने लोग बिना रोल नंबर वाले हैं। ये राम सिंह अभी आ रहा है लगता है। मैम 37 को दिया। 37 ना? यस मैम। 37 तनवीर को दिया मैंने। ओके मैम। ओके चलो shall I end the lecture student? Yes. Yes, ma'am. Okay. यस that's मैम। it. Ma'am 52. Ma'am roll number 52. हाँ 52 राम सिंह तो आराम से आओ और फिर बोलना कि हाँ मुझे भी चाहिए करके अटेंडेंस दिया तुझे मैंने। चलो बाय। सोहरा ने तो मंदिर आया हूँ। हाँ अच्छा लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा है मतलब? हाँ मंदिर में जा रहा है। चलो बाय। त्योहार है ना मैम।